Assalamu alaikum everyone. Let's move down to the next part of classification of elements chapter, where we will continue with the periodic properties. Last class we have discussed how the atomic size is measured by different methods. Now we'll discuss how atomic radius varies in the periodic table, how it changes in the periodic table. Now here, the variation what you are going to learn for different periodic properties will be understood in two manners. आपको जो वेरिएशन पढ़ना है अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का दो तरीके से पढ़ना है, यानी कि याद रखने के लिए इजी होने के लिए कोई भी आप ग्रुप ले लो, जब भी आप वेरिएशन कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी का पढ़ते हैं, वेरिएशन यानी कि चेंजेस, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपको दो तरीके से पढ़ना है। एक अगर ग्रुप्स की बात लेंगे तो आपको जाना है इस तरह, डाउन द ग्रुप देखना है, साइज या आयनाइजेशन इन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी ले लो। हम जब पढ़ते हैं तो दो वेरिएशंस देखते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप, यानी कि ऊपर से नीचे आना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, whatever periodic property you are studying, it is further told in the explanation as down the group. Down the group माने top to bottom, you will be moving in any of the groups from top to bottom, right? इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्लेनेशन में डाउन द ग्रुप बोल के। और जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, when you are moving from left side to right side, we will be using the term or the line across the period or along the period, क्योंकि ये अलग अलग periods है। तो लेफ्ट से राइट जब जाते हैं या तो हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोलेंगे या फिर कॉमनली वी से along the period, right? So variation of all the periodic properties will be learned in two manners: what happens to the periodic property down the group and what happens to the periodic property across the period. Okay, let's see variation of atomic radius down the group, यानी कि आपको ऊपर से नीचे, ग्रुप के ऊपर से नीचे तक चेक करना है साइज कैसे चेंज हो जाता है, हाउ व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, राइट? इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे कि लिथियम। एटॉमिक नंबर है 3। आई राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल डायग्राम देखेंगे, इस तरह रहेगा। ये इसका सेंट्रली लोकेटेड इन न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से सॉरी, और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस बन जाएगा लिथियम के लिए, राइट? इफ आई टेक बिलो लिथियम सोडियम इज देयर, एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? यानी कि इसमें कितने ऑर्बिट्स हो गए? लिथियम में 2 ही ऑर्बिट थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, बट इन सोडियम यू कैन फाइंड 1 2 and this number is 3, 3 orbits are there when you check its structure. See here, this is the nucleus part. First orbit contains 2 electrons, second orbit 8 electrons, again last orbit contains 1 electron. If you see the distance, it has increased, यहाँ पे इतना था, अब यहाँ पे distance बढ़ गया क्योंकि last electron third orbit में present है, right? One more example, below sodium we have in the periodic table potassium, atomic number 19. If I write the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए। इसके बाद आता है 4s1, राइट? सो
First orbit contains 2 electrons. Second orbit contains 8 electrons. Still third orbit it is filling up with S and P. 8 electrons are there. Now fourth orbit also contains 1 electron. इसमें 4 orbits आ गए. Right? It contains 4 orbits. So first orbit 2, second orbit 8, third orbit is also containing 8. Now last orbit contains 1 electron. Right? सभी में डिस्टेंस देखो क्या हो रहा है. न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस, बिकॉज एटॉमिक रेडियस वी डिफाइन इट एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost orbit containing electron. What is happening to the distance? It is increasing, right? So we conclude that atomic radius down the group, because we are moving down a particular group. मैं अल्कली मेटल्स के ग्रुप में नीचे आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो हम देख सकते हैं साइज क्या हो रहा है. इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. सो atomic radius, any of the group you take, down the group increases. Atomic radius of elements increases down the group. Why it is increasing? First reason क्या होगा? Due to addition of new shells. जब भी आप नीचे आते हैं, एटॉमिक नंबर नो डाउट बढ़ रहा है. एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी बढ़ती है. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जब बढ़ती है तो एट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ते हैं. साइज कम होना चाहिए था, लेकिन यह साइज बढ़ रहा है क्योंकि हर एक लेवल पे लिथियम के नीचे आ रहे हैं आप, नेक्स्ट पीरियड को आ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड को जा रहे हैं. जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, एक एक नया नया शेल एड अप होते रहता है. व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, ए न्यू एनर्जी लेवल इज एडेड. Distance from the nucleus to the last electron increases and size increases. Right? So this is the thing. Atomic radius increases down the group since new energy levels are added down the group, due to which distance between the nucleus and the valence electrons increase and the size increases. Okay, remember this point. They will ask you in the examination what is the variation, और आपको जो है करेक्ट ऑर्डर में कोई एलिमेंट्स का जो है सिंबल्स देते हैं, आपको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछते हैं, तो पहले आपको याद रहना है पोजीशन उन एलिमेंट्स का. पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स का लोकेशन क्या है, पहले वो लिख के आप उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट मैनर में लिख सकते हैं. राइट? से फॉर एग्जांपल यू आर गिवन पोटेशियम, lithium, sodium. Arrange the following elements in the increasing order of their size. So increasing order, first of all आपको periodic table में इनका location कैसे मालूम रहना है. जैसे कि lithium आता है, उसके नीचे sodium आता है, उसके नीचे potassium आता है. They are arranged down the group now. So what happens down the group to the atomic radius? It increases. Means smallest will be lithium, followed by sodium, then followed by potassium. So lithium is smaller than sodium, sodium is smaller than potassium. Right? This will be the order you have to write. So why it is increasing? New energy levels are added down the group, due to which distance between nucleus and valence electrons. Valence electron meaning is last orbit electrons are called as valence electrons. They increase and hence size increases. Okay. Next we'll see how it varies across the period. यानी कि आपको पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड से राइट साइड चेक करना है कि साइज क्या होता है. यहाँ पे भी एक पीरियड का ही एग्जांपल लेता हूं मैं. This one I'll consider it as again lithium. Lithium atomic number 3 है. सेकेंड पीरियड का एग्जांपल ले रहा हूं मैं. सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, lithium atomic number 3, 1s2, 2s1. First orbit contains 2 electron, second orbit is containing 1 electron. Right? इसके बाद आएगा लिथियम के बाद आता है बेरिलियम. बेरिलियम atomic number 4, 1s2, 2s2. Right? 1s2, 2s2. First orbit containing 2 electron,
second orbit is also containing 2 electrons. Okay, see what thing you have finding here is the new electron, या 2s1 था या 2s2, the new electron is added in the same shell. अभी हम प्रीवियस में देखें डाउन द ग्रुप जाते हुए न्यू इलेक्ट्रॉन वाज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन द न्यूअर एनर्जी लेवल, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में ऐड हुए हैं. अगेन आई विल कंटिन्यू विद बोरॉन. बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1. यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल चेंज हुआ है, लेकिन ऑर्बिट वही सेकेंड ऑर्बिट है. सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं अभी? 3, राइट? सो 2 3. So like this, when you go on checking out the structure, atomic structure of all these second period elements or any other period elements, you will find that electrons will be added to the same energy level. बोरॉन के बाद आता है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6. कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p2. फर्स्ट ऑर्बिट में सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट ऑर्बिट में अब 4 हो गए. कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन. When you talk about nitrogen, atomic number 7, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा. फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट टोटली नाउ 5 electrons, 2 plus 3 5. Next, when you go to oxygen, atomic number 8, 1s2 2s2 2p4. First orbit 2 electrons, second orbit 6 electrons. And when you move to next element, fluorine, atomic number 9, 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा. First orbit contains here 2 electron, second orbit 7. And coming to the last element of that period, neon, atomic number 10, 1s2 2s2 2p6. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 electrons. What you find in the structure is when you are moving across, you can see in the diagram size is decreasing, size is going on decreasing, right? एक तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सब में 2 ही ऑर्बिट है तो साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है? यहाँ पे साइज डिक्रीज इसलिए होता है, फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होते जा रहे हैं. दैट इज फॉर सेकेंड पीरियड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द लास्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेकेंड शेल, राइट? इससे होता क्या है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ते जाता है, राइट? यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करता हूं. ये न्यूक्लियस, ये एक ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट लेता हूं और एक ऑर्बिट यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, थर्ड ऑर्बिट. ओके, तो ये न्यूक्लियस है. सपोज ये एक टीचर है, स्टेज के ऊपर है. ये फर्स्ट रो है स्टूडेंट्स का, जहाँ पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, कैपेसिटी उतनी है. सेकेंड रो यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स बैठे हैं. थर्ड रो लास्ट बेंच की रो है. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लेट आते हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे इनके स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, जैसे कि 1 2 3 4, राइट? तो टीचर का पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, टीचर का पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर कंसंट्रेशन अगर है, उसी तरह न्यूक्लियस का भी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. न्यूक्लियस का ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको हम बोलते हैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज. टोटल न्यूक्लियर चार्ज. What is this total nuclear charge?
force of attraction of nucleus on all the electrons of atom is called as total nuclear charge, right? नेक्स्ट, अब जैसे ही लास्ट बेंच पे स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है, 2 3 4 हो जा रहे हैं, तो टीचर का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लास्ट बेंचेस पे रहता है, क्योंकि पूरी क्लासरूम की हरकत जो होती है, अच्छा होना, अच्छा तो नहीं होता है, बैक साइड बेंच पे ज़रा कुछ ट्रबल रहता ही रहता है, राइट? तो टीचर का भी कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड बेंच जितने भी रहते हैं उसको छोड़ के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लास्ट बेंच पे देते हैं ताकि क्लास स्मूथ से चल सके, राइट? So the teacher particularly will be focusing on the last bench students, what they are doing, whether they are writing or not. In the same manner, न्यूक्लियस का अगर आप सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको अगर आप कंसिडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Effective nuclear charge is force of attraction of nucleus on the valence electrons, on the last orbit electrons. What is effective nuclear charge? Force of attraction of nucleus on the outermost orbit electrons, on the valence electrons, is called as effective nuclear charge, right? तो यहाँ पर जितने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है। जैसे स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी लास्ट रो में, टीचर को डर रहता है कि क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से ज्यादा कंसंट्रेशन लास्ट बेंच पे बढ़ते जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मींस टीचर इज मोर पर्टिकुलर विद द लास्ट बेंच स्टूडेंट्स। इन द सेम मैनर, व्हेन यू टेक force of attraction of nucleus only on the last orbit electrons, it is called as effective nuclear charge, right? अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ये फुल हो गए बेंचेस, उतना कंसंट्रेशन कॉमन ही रहता है, ज्यादा कंसंट्रेशन अब किसके ऊपर रहेगा? लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स के ऊपर। उसी तरह न्यूक्लियस का भी फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट फिल हो चुके हैं, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ते जाता है, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो रिमेंबर दिस वन, टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज force of attraction of nucleus on all the electrons. Effective nuclear charge is the force of attraction of nucleus only on the valence electrons, is called as effective nuclear charge. In shortcut, we will call it as ENC, right? तो along the period, कोई भी आप पीरियड में लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओ, इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर शेल में ही ऐड होते जाते हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑर्बिट में फिल होते जाते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट से तो थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स एंट्री होते जाते हैं, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते जाते हैं, राइट? सो ओवरऑल वी से व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, electrons are added to the same shell, due to which effective nuclear charge increases. And when effective nuclear charge increases, the size, the electron cloud shrinks, contracts, and the size decreases. तो effective nuclear charge बढ़ने से ये लास्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो डर के मारे जरा डर, अरे टीचर देख रहे हैं हमको, वो जरा करीब करीब आके बैठने की कोशिश करते हैं। मीन्स दे आर ब्रॉट क्लोज टू द न्यूक्लियस, राइट? दे कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे, इलेक्ट्रॉन्स जो है करीब आते जाते हैं न्यूक्लियस के, बिकॉज दे आर मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। सो विद द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, the electron cloud contracts, shrinks, and the size decreases, right? So overall, what happens? Atomic radius decreases across the period since electrons are added to the same shell. Effective nuclear charge increases and size decreases. Okay, so this is the thing you have to remember. अब जैसे कि example, if you are given nitrogen, oxygen, carbon, boron, arrange the following elements in increasing order of size.
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज बोल के अगर आपको पूछ रहे हैं इन चारों एलिमेंट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना है, तो पहले आपको देखना है इनका एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में लोकेशन कैसा है. So you have to be thorough with first 54 elements. Compulsorily, first 54 elements position you need to remember, right? एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन सा आता है, ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा आता है. एक 54 एलिमेंट्स का अगर आपको याद है तो ये वेरिएशंस को अरेंज करना बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट. सो इन द पीरियोडिक टेबल boron will be there, then carbon, then oxygen, sorry, nitrogen, then oxygen, right? 5, 6, 7, 8. You are asked to arrange them in increasing order of their size. Now just now we have discussed across the period what happens, atomic radius decreases. Atomic radius decreases across the period, means when you move across atomic size decreases. तो सबसे smallest कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन. सबसे लार्जेस्ट कौन सा इन चारों में, बोरॉन. यू आर आस्क्ड टू राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉल टू लार्ज. तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन है. उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा कार्बन और उसके बाद आएगा बोरॉन, राइट. अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछते हैं तो ये रहा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट. तो क्वेश्चंस पूरे वेरिएशन बेस्ड ही रहते हैं. आपको डेफिनेशन वगैरह रेयरली पूछते हैं, आया तो बहुत ही अच्छा है. एक थियरी एग्जाम में आपको वेरिएशन व्हाट हैपेंस अक्रॉस द पीरियड, व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप साइज के लिए पूछते हैं. आपको रीजन के साथ वेरिएशन लिखना है. इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द मार्क्स. लेकिन सीईटी नीट में आपको सिर्फ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं. 4 ऑप्शंस रहते हैं मिक्स्ड फॉर्म में. आपको करेक्ट ऑर्डर कौन सा है आइडेंटिफाई करके लिखना रहता है. ओके